Very good afternoon, everyone. Am I audible? Okay, thank you, Shraddha, Yogesh, Adarsh, everyone. Thank you, Srijan. Good afternoon. So I hope you enjoyed Diwali vacation a lot. So it's time to come back and focus on studies. So in continuation of that, as I have remember in the previous lectures, we have covered various types of UML diagrams and we finished up with the sequence diagram. Actually, Yogesh is going to ask when the college will be reopened. This totally depends on central as well as state government. Okay, even we don't know. We all are eager to meet with one another, so I can understand. But it's totally depends on the state and central government. Once they allow, definitely we will be there. We all of you. Okay. So till then, be safe. Yeah, okay. So, in continuation of that UML diagrams, let me cover in today's lecture one theoretical concept that is coding. But question will be definitely will ask from that portion. So let me share the screen and start the lecture. Just let me know, is it visible to you guys? Okay, thank you, Adarsh. So let me proceed. So today's topic is coding, various coding standards. Okay. So first of all, we will discuss what is coding exactly. So add is definitely I will share this slides to you guys, and I would like to mention once again that this is purely theoretical concept, but there is fair chances that question will be asked from this portion as well. So you have to cover this PPTs as well. Okay, I will try to sum up the entire things in this lecture only, so that from the next lecture onwards we will start some numerical portions once again. Okay. So let's focus on what is coding and what are the various constraints, what are the various properties related to coding. So as it is mentioned, goal is to implement the design in best possible manner. This is the goal for coding. In what manner we should code? We should code just to ensure the implementation of the design in the best possible manner. Coding affects testing and maintenance, both the phases. कि आपने जितना इफेक्टिवली कोडिंग कर लिया होगा उतना ही लेस एफर्ट विल बी रिक्वायर्ड इन टर्म्स ऑफ टेस्टिंग एंड very less effort will be required in terms of maintenance. But your coding is not proper, then definitely you are going to waste too much time on testing, and your product will be long way, you can say, active in maintenance phase. Okay, that should not be the best practice. As testing and maintenance costs are high, the aim of coding activity should be, or not should be, it must be to write code that reduces them. So it's being a software developer, it's our moral duty to write the code in such a manner through which we can expect that testing and maintenance cost will be as reduced as possible. This is a moral responsibility of any software developer, any coder. Hence, goal should not be to reduce coding cost, but testing and maintenance cost. Okay, we should not focus on merely to reducing coding cost. Okay, that will be automatically decreased once you develop your code in an efficient manner, so that testing and maintenance cost will be decreased. It means make the job of tester and maintainer easier. This should be the practice. However, various types of coding processes are associated.
This coding starts when specifications for modules from design is available. अब देखिए कोडिंग स्टार्ट कब होगी? When you are having various modules specification from design team. अब आपने रिक्वायरमेंट गैदर कर लिए, डिजाइनिंग हो गई. अब डिजाइनिंग में क्या हुआ? एक एक मॉड्यूल आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि मॉड्यूल 1 दिस से, मॉड्यूल 2 इज देयर, 3 इज देयर, एंड फॉर ईच एंड एवरी मॉड्यूल यू आर हैविंग detailed specification. Now it will be very easy to you to code, okay, because you are having the document for specification. Each and every concept is mentioned over here कि वो मॉड्यूल क्या है, उसकी फंक्शनिंग क्या है, इनर मॉड्यूल्स क्या क्या हैं उसके, हु इज गोइंग टू यूटिलाइज दिस पर्टिकुलर मॉड्यूल. Likewise, usually modules are assigned to programmers for coding. ये expected है ही कि भाई जो कोड करे वो प्रोग्रामर्स को ही असाइंड होंगे वो मॉड्यूल्स की, that you guys are supposed to develop it. Okay, our approaches may be what? In top down development, टॉप लेवल मॉड्यूल्स आर डेवलप्ड फर्स्ट. कि अगर टॉप टू बॉटम अगर हम चल रहे हैं तो इट इज एक्सपेक्टेड कि हम टॉप लेवल मॉड्यूल्स को पहले डेवलप करेंगे. वाइल इन केस ऑफ बॉटम अप, लोअर लेवल मॉड्यूल्स विल बी डेवलप्ड फर्स्ट. कि अगर हम बॉटम अप से हैं तो जो बॉटम लेवल पर हैं वो सबसे पहले डेवलप्ड होंगे. बट इन जनरल, एज आई हैव ऑलरेडी लेट यू नो, दिस इज अ कॉमन प्रैक्टिस इन इंडस्ट्री. सर, नाइदर एग्जैक्टली टॉप डाउन नॉर bottom up. A sandwich or hybrid approach is being utilized nowadays in industry. कि जब जिस पर्टिकुलर मॉड्यूल की जरूरत है आप उसको डेवलप कर लीजिए, इज रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो टॉप लेवल पर है या बॉटम लेवल पर. whenever it is required by the and as per the nature of the project, as per the demand of customer, we the developers are supposed to develop this particular model initially. Okay, for coding developers use different processes. In the next slide onwards, we are going to discuss 4 different processes that are very popular for coding. Okay, so this is very important topic. Please make it very clear for examination purpose as well. तो आगे हम 4 different processes पढ़ने वाले हैं coding की, वो कहीं ना कहीं एग्जाम में आपके आएंगी. So let me start. The very first process or first approach is what? An incremental coding process. नाम से ही काफी कुछ आपको क्लियर होता चल रहा होगा कि हम कोड कर रहे हैं वो इंक्रीमेंटल फैशन में चल रही है. कैसे चल रही है? बेसिक प्रोसेस क्या है इसकी? राइट कोड फॉर द मॉड्यूल, यूनिट टेस्ट इट, फिक्स द बग. ये सबसे पहले जो मॉड्यूल आपको असाइन हुआ, यू आई गाइस आर सपोज टू राइट अ स्पेसिफिक कोड फॉर दैट पर्टिकुलर मॉड्यूल. ओके, कि जो भी मॉड्यूल था उसके लिए हमने कोडिंग कर ली. ओके, फर्स्ट टास्क. नेक्स्ट, यूनिट टेस्ट इट. दैट मीन्स कि जिसने कोड किया है अगर वही उसको टेस्ट कर रहा है, दैट पर्टिकुलर टेस्टिंग इज लाइक अ यूनिट टेस्ट कोड. कि मैं खुद से अपने चेक कर रहा हूँ कि वेदर देयर इज एन वार्निंग मैसेज और एरर मैसेजेस और व्हाट. ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप लोगों ने सी प्लस प्लस में प्रोग्राम डेफिनेटली बनाए होंगे, और आप उसको जब एग्जीक्यूट कराते थे तो पहले कंपाइल करते थे फिर रन करते थे उसको, है ना. तो रनिंग टाइम पे या कंपाइलेशन टाइम पे जो भी एरर मैसेजेस आते थे या जो वार्निंग मैसेजेस आते थे, आपको उनको रिमूव करना होता था. तो वो टेस्टिंग किसी प्रोफेशनल ने नहीं की थी, वो आपने खुद से ही की थी कि कंप्लीट प्रोग्राम इज रेडी, नाउ लेट मी रन इट, लेट मी कंपाइल इट. मान लीजिए कुछ कंपाइलेशन एरर आ गई या उसमें कुछ वार्निंग मैसेजेस हैं या एरर मैसेजेस हैं कि सेमीकोलन इज मिसिंग और करली ब्रेसेस इज नॉट मैच्ड, लाइक व्हाटएवर द प्रॉब्लम मे बी. देन यू गाइस आर सपोज्ड टू फिक्स दैट पर्टिकुलर बग्स. कि जब तक वो सारी बग्स फिक्स नहीं हो जाती, जब तक कि एरर मैसेजेस जीरो नहीं हो जाते, योर प्रोग्राम विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड. Okay, because in that case tester is you yourself. So that means it is like a unit test कि वो particular testing जिसमें developer of the code is responsible to test as well, कि वो अपने level पे test करके दे रहा है. This is unit testing. Okay, however it is better to do this incrementally. Write code for a part of the functionality, then test it and fix it, then proceed. ये सबसे बेस्ट प्रैक्टिस क्या है हमारे यहाँ पर? कि सबसे पहले कि हम जो फंक्शनैलिटी मॉड्यूल हो उसको वेरियस टाइप्स में सेग्रीगेट कर लें. किसी एक स्पेसिफिक पार्ट ऑफ फंक्शनैलिटी को हमने कोड किया, देन उस उतने पार्ट को टेस्ट किया, और अगर कोई एरर आए तो उसको फिक्स कर दिया और फिर अगले पार्ट पर आ गए. लेट मी टेक एन एग्जांपल ऑफ कैलकुलेटर प्रोग्राम. ओके, अब कैलकुलेटर में क्या है कि आप अर्थमेटिक ऑपरेशंस भी करेंगे, लॉगरिथमिक ऑपरेशंस भी करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिकल भी करेंगे, और तीनों को इंटीग्रेट भी करेंगे सो दैट एंटायर कैलकुलेटर शुड बी रिप्रेजेंटेड. So what you can do initially, first of all, you are taking only arithmetic operations rather than considering the entire project, entire calculator project. आपने क्या किया? सिर्फ arithmetic वाले को फोकस किया.
अर्थमेटिकली कोडिंग स्टार्ट कर दी आपने, उसी के लिए टेस्ट केसेस लगाए, उसको टेस्ट किया, अगर कोई एरर आती है तो उसको फिक्स कर दिया, नहीं आती है तो अगले वाले पार्ट पर आ गए। फॉर एग्जांपल लॉगरिथमिक ऑपरेशंस, जब आप लॉग वाले प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो कैलकुलेटर में, वो सॉल्व हो गए, देन मूविंग टुवर्ड्स ट्रिग्नोमेट्रिकल प्रॉब्लम्स, एंड देन फाइनली आप इन तीनों को इंटीग्रेट कर रहे हैं कि नाउ माय कंप्लीट कैलकुलेटर प्रोजेक्ट इज रेडी टू यूज। ओके, तो ये 4 पार्ट में इसको डिवाइड किया जा सकता था। दैट मीन्स व्हाट कोड इज बिल्ड कोड फॉर अ मॉड्यूल इंक्रीमेंटली। अब इस केस में क्या होगा, देखिए इंक्रीमेंटली आपका प्रोजेक्ट इंक्रीज होता चलेगा, कोड होता चलेगा। जरा बताएं क्या ये केस क्लियर हुआ सभी को? जस्ट रेस्पॉन्ड whether this process is clear. Great, thanks everyone, Ritik और हरे बहुत सारे, great, thank you. So let's proceed with this particular flow chart. अगर ये केस क्लियर हुआ है तो जरा देखें, ये फ्लो चार्ट भी सबको क्लियर होना चाहिए। स्टार्टिंग फ्रॉम स्पेसिफिकेशन ऑफ द मॉड्यूल, कि मॉड्यूल का स्पेसिफिकेशन हमको मिल गया। नाउ वी आर सपोज टू राइट सम कोड टू इम्प्लीमेंट सम फंक्शनैलिटी, कि सारा मॉड्यूल कंसीडर एक बार मना करके कोई एक स्पेसिफिक मॉड्यूल ले लिया, अर्थमेटिक ऑपरेशंस ले लिया, उसको हम कोड कर रहे हैं। देन एनहेंस टेस्ट स्क्रिप्ट्स फॉर टेस्टिंग न्यू फंक्शनैलिटीज, की जो टेस्ट हमने भी डेवलप किया, कोड किया, उसके लिए टेस्टिंग हमने की। रन द टेस्ट स्क्रिप्ट, उनको रन किया, एग्जीक्यूट किया। नाउ कंडीशन चेक फॉर एरर्स, अब या तो एरर आएंगी या नहीं आएंगी। अगर आती हैं देन यू आर सपोज टू फिक्स ऑल द बग्स। ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि सारी एरर जीरो नहीं हो जाती। इफ देयर इज नो एरर एट ऑल, देन वंस अगेन यू हैव टू चेक ऑल स्पेसिफिकेशन कवर्स, क्या आपने सारी फंक्शनलिटी कवर कर ली हैं? इफ यस देन एग्जिट, इफ नो देन बैकट्रैक टू द राइट सम कोड फॉर इंप्लीमेंट सम रेस्ट ऑफ द फंक्शनलिटी। कि अगर अर्थमेटिक कंप्लीट हो गया, नाउ इट्स टाइम टू मेंशन द कोड फॉर लॉगरिथमिक ऑपरेशंस। वो सारी प्रोसेस फिर से चलती रहेगी। वंस लॉगरिथम इज कंप्लीटेड, देन स्टार्ट फॉर ट्रिग्नोमेट्रिकल ऑपरेशंस। हम सबको इंटीग्रेट कर, ये हो गया, लास्ट में सबको इंटीग्रेट कर दीजिए। सो दिस इज अ प्रोसेस फॉर इंप्लीमेंटिंग कैलकुलेटर प्रोग्राम। ओके, let's move towards the next process that is very important with respect to today's scenario, because this is more likely applicable in agile software development. As I have already let you know that most of the industries has been adopted agile methodologies for developing their software. So this is one of the you can say latest approach and very popular approach, like test driven development. Okay, so let's have a look what is exactly this coding process changes the order of activity in coding. अब देखिए पहली लाइन में ही मेंशन है कि काम तो सारे वही होंगे जो अभी आपने इंक्रीमेंटल में देखे, बट द ऑर्डर विल बी चेंज्ड। वो कुछ शफलिंग हो रही है, किस बेस पे हो रही है? लेट्स सी। इन टीडीडी और टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट, प्रोग्रामर फर्स्ट राइट्स द टेस्ट स्क्रिप्ट and then writes a code to pass the test cases in the script. अब देखिए एक बिल्कुल नई अप्रोच है। अब तक क्या होता था कि हम पहले कोड करते थे फिर टेस्ट करते थे, ये थोड़ा सा यूजुअल लगता है हम लोगों को। रीजन भी कि हमने ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो देखे थे उसमें यही काम हो रहा था कि पहले रिक्वायरमेंट गैदरिंग, देन डिजाइन, देन कोडिंग एंड देन टेस्टिंग। ओके, दिस इज अ ट्रेडिशनल वे। बट एजाइल इज लाइक, मैंने आपको बताया था उस टाइम भी, एजाइल इज नॉट मेयरली अ मॉडल, इट इज अ माइंड सेट। ओके, इट इज अ कल्चर। उसके अकॉर्डिंग एक हमारे पास फ्रेमवर्क है दैट इज नोन एज एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग, जो लास्ट लाइन पे आपको दिख रहा है एक्सपी। दिस इज द नेम ऑफ अ फ्रेमवर्क ऑफ एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल। ओके, इस स्पेसिफिक इस पर्टिकुलर फ्रेमवर्क में ही टीटीडी का कंसेप्ट यूज होता है। एज पर दिस कंसेप्ट होना क्या चाहिए कि सबसे पहले हम टेस्ट स्क्रिप्ट बनाते हैं कि क्या क्या हम टेस्ट करने वाले हैं, और इसका आंसर हम कब वैलिड मानेंगे कि अगर ऐसे आंसर आते हैं तो टेस्ट केस पास हो गया, इस तरह के आंसर आते हैं तो टेस्ट केस फेल हो गया। ओके, तो इसका लॉजिक सिंपल सा क्या है कि यहाँ पर देखिए अजाइल का मतलब क्या है? वेरी क्विक चेंज होना, क्विकली चेंज, रेस्पॉन्ड टू चेंज। क्योंकि यहाँ पर हम टाइम बहुत कम लेकर के चलते हैं, तो ट्रेडिशनल अप्रोच में हम टेस्टिंग पर उतना टाइम इन्वॉल्व क्यों कर रहे हैं कि भाई टेस्ट केस फेल हो गए, अब उसको फिक्स किया जा रहा है, दिस एंड दैट। हम अपने टेस्ट केस ही ऐसे बना लें जिनके बेसिस पर हमें क्लियरली आइडेंटिफाई हो जाए कि ये पास होगा, ये फेल होगा। और जब टेस्ट केसेस आइडेंटिफाई हो जाएं, उनके बेसिस पर हम कोड करें। तो कोड इन्होंने सेकंड ऑप्शन रख दिया, फर्स्ट प्रेफरेंस इज राइटिंग द टेस्ट स्क्रिप्ट, कि पहले ये चेक कर लो कि हमें क्या क्या टेस्ट करना है। जब ये आइडेंटिफाई हो जाए, अब लिखिए कि इसका कोड क्या बनेगा। तो कोड मेरा
90% चांसेस वही हैं कि मैं वही कोड लिखूंगा जो उस पर फिट बैठे, जो मुझे पता है कि ये इस पे पास होना है, तो मैं वही कोड लिखूंगा जो वहां पर पास हो जाए, है ना। तो ये एक नया आइडिया है। दिस इज डन हाउएवर इंक्रीमेंटली, तो ये भी उसी फैशन में चलेगा कि भाई पहले अर्थमेटिक के लिए कर लिया, फिर लॉगरिथमिक के लिए कर लिया, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक के लिए कर लिया, फिर इंटीग्रेट कर लिया सारे को। ओके, इट इज रिलेटिवली a new approach and it is a part of the extreme programming. This is what a popular framework, let me write. तो अगर आप चाहें तो ये लाइन लिख सकते हैं, एक्सपी और एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग is one of the popular framework of agile methodologies. So there are a number of agile methodologies framework. Among them, this one is a one of the popular, you can say. However, the most popular is Scrum, and Kanban is also there, but this one is one of the popular, extreme programming. Okay, so let's proceed. In TDD, you write just enough code to pass the test, कि हम सिर्फ उतना कोड लिखेंगे जो टेस्ट पास कर ले, ज्यादा कोड की जरूरत ही नहीं है. It means code is always in sync with the test and gets tested by the test cases, कि हमेशा वो सिंक्रोनाइज रहेगा कि जो मेरे टेस्ट केसेस थे उसी के अकॉर्डिंगली ही मेरा कोड बनेगा, तो बहुत ज्यादा वेरिएशंस नहीं आएंगे. However, it is not true in code first approach, as test cases may only test part of the functionality, कि पहले वाले केस में ऐसा नहीं होता था. Responsibility to ensure that all functionality is there is on task case design, not coding. कि अब हम ये ensure करें कि जितनी भी functionality है that should be on the basis of test cases, not on the basis of coding. Coding तो अपने आप हो ही जाएगी फिर एक बार test cases design हो गए हमारे तो. Okay, help ensure that code is testable. ये भी हम ensure कर लेंगे कि जो भी मेरा कोड होगा वो testable होगा, क्योंकि उसके टेस्ट केस स्क्रिप्ट के बेसिस पे तो कोड बना है, तो उससे बियॉन्ड तो जा ही नहीं सकता फिर वो. ओके, तो ये भी एंश्योर हो जाएगा. Additionally, it focus shift to how code will be used as test cases are written first, कि कोड को कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे फंक्शन में लेके आना है, जबकि मेरे टेस्ट केसेस पहले ही आइडेंटिफाई हो गए. ओके, फंक्शनैलिटी प्रायोरिटाइजेशन हैपेंस नेचुरली, कि जैसे जैसे टेस्ट केसेस बनते जाएंगे उनकी प्रायोरिटाइजेशन सेट होते जाएंगे कि पहले मुझे ये काम चाहिए फिर ये काम चाहिए. अकॉर्डिंगली आई विल स्टार्ट डेवलपिंग एज वेल. Has possibility that special cases for which test cases are not possible get left out. और अगर ऐसा कोई केस आइडेंटिफाई होता है जिसके लिए टेस्ट केस बन ही नहीं सकता है, तो वो पहले ही आइडेंटिफाई हो गया, वो सेग्रीगेटेड हो गया, so that can be taken with extremely care. Okay, code improvement through refactoring will be needed to avoid getting a messy code. So there is a new term like code refactoring. Let me write this term. ये कोड रिफैक्टरिंग को समझ लीजिए, ये क्या टर्म है. वंस अगेन, दिस इज अ पार्ट ऑफ एजाइल मेथोलॉजी, और इवन यू कैन अप्लाई इन योर डेली बेसिस कोडिंग पार्ट. आप लोगों ने कई बार ऐसा फील किया होगा कि कोई प्रोग्राम आपने बनाया, उसका कोई एक स्पेसिफिक मॉड्यूल या क्लास कुछ भी कह लीजिए, एक पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ कोड, अब आपको लगता है ये थोड़ा सा लेंदी है, ये वर्क तो एग्जैक्टली सेम कर रहा है जैसा आपको डिजायर्ड था, वही फंक्शनिंग उसकी हो रही है, लेकिन ये काफी बल्कि सा हो गया. क्यों ना इसमें हम कुछ वो लगाते हैं कि लाइक जैसे स्विच केस स्टेटमेंट लगा सकते थे या स्विच केस हटा सकते थे, लिमिटेड कर सकते थे उसको. अलॉन्ग विद दैट आप ये भी कह सकते हैं कि उसमें इनहेरिटेंस के कंसेप्ट ले आए. एक बार बार मुझे फंक्शन डिफाइन ना करना पड़े, सिर्फ मैं कॉल करूँ, वो फंक्शन कहीं और डिफाइंड है और उसको मैं कॉलिंग कर रहा हूँ सिंपली. तो ऐसा करके मेरी जो फाइल की कोड साइज है वो स्मॉल हो जाएगा, या मैं उसको किसी फंक्शन में एक क्लास में ला सकता हूँ rather than mentioning the normal one. So various approaches may be there just to reduce your code size. Okay, या आपके कोड को और ज्यादा क्रंची बनाने के लिए आप कुछ और मैकेनिज्म अप्लाई कर सकते हो, बट मेक इट वेरी क्लियर द बेसिक बिहेवियर ऑफ दैट सेगमेंट ऑफ कोड मस्ट नॉट बी चेंज्ड. कि जो काम उससे एक्सपेक्टेड था उस फंक्शन से, उस क्लास से, वो चेंज नहीं होना चाहिए, उसका बेसिक बिहेवियर चेंज ना हो, वो क्रिस्पी हो जाए, है ना. क्रिस्पी का मतलब कि वो टू द पॉइंट हो, फालतू की कोडिंग नहीं हो उसमें, कि लेंदी कोडिंग नहीं आ रही है उसमें, जो रिक्वायर्ड था सिर्फ उतना ही मैंने उसको अपडेट कर लिया. दिस फिनोमिना इज नोन एज कोड refactoring. That means you are modifying your existing code
keeping in mind that its obvious behavior must not be changed. Okay, this is code refactoring. So let's proceed with this flow chart. अब खुद देख करके बताएं क्या ये फ्लो चार्ट सभी को क्लियर है, और जिसको क्लियर होता चले वो रेस्पॉन्ड करता चले चैट बॉक्स में. जस्ट गो इट थॉरोली. इसके सारे स्टेप्स देख लीजिए एंड आई होप ये क्लियर होना चाहिए, लेकिन फिर भी थॉरोली देख लीजिए, क्योंकि अगर आपने इंक्रीमेंटल वाला देख लिया है तो एक दो स्टेप बस शफल्ड हैं. द बेसिक आइडिया इज सेम. जस्ट चेक थॉरोली. So as of now only Aryan and Yogesh responded. Ritik as well. Shashank, Adarsh, वाह क्या बात है. Just check it thoroughly, each and every step. Shaurya, just comment what you want to say. ज़्यादातर लोगों के मैसेज I have received. Okay, okay, Shaurya, no issues. So now it's time for those guys who have any doubt regarding this flowchart. जिसको ये flowchart में कोई specific समझ में नहीं आया है step, वो मुझे बताएं किसकी समझ में नहीं आया. Yes वाले तो काफी हो गए. Great, nobody responded. So that means I can assume it's obvious or clear to everyone. Okay, बेसिक स्टेप थे तो इट इज एक्सपेक्टेड कि आपको समझ में आ ही गया होगा. कुछ भी खास काम नहीं आने हो रहा है, बस ऑर्डर चेंज हुआ है ये. ओके, अब जो थर्ड टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं या थर्ड प्रोसेस हम देखने जा रहे हैं, वंस अगेन इट बिलोंग्स टू एजाइल मेथोलॉजीज. आई रिपीट, वंस अगेन इट बिलोंग्स टू एजाइल मेथोलॉजीज. उसी का ही एक कंसेप्ट है जो कि नाउअडेज बहुत पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा यूज में आता है, और शायद कभी जाने अनजाने में आप लोगों ने भी यूज कर लिया होगा जब आप लोग लैब्स में होते थे या सिस्टम की स्कैरसिटी होती थी, या अगर नहीं भी होती थी इवन देन, कि जैसे आप लोग प्रोजेक्ट साथ में करते हैं या किसी लैब में कोई प्रोग्राम आप लोग साथ में बैठ के कर रहे हैं, तो वो जो आइडिया है उसका शायद आप में से कुछ लोगों ने उसको फॉलो किया भी हो, लेकिन उसका नाम हम नहीं जानते थे, है ना. तो आज हम वो भी सीखेंगे. लेट मी प्रोसीड. थर्ड प्रोसेस इज व्हाट? पेयर प्रोग्रामिंग. अब देखते हैं पेयर प्रोग्रामिंग क्या है. It is also a coding process that has been proposed as key practice in extreme programming, which is what? A popular framework of agile methodologies, जो भी हमने डिस्कस किया था कि एक्सपी का ही एक तो अप्रोच हो गई हमारी टीडीडी, एक्सपी की ही एक और अप्रोच है पेयर प्रोग्रामिंग की. टीडीडी तो हो ही रही है, लेकिन इसको इंप्लीमेंट एंश्योर करने के लिए वी मस्ट फोकस ऑन पेयर प्रोग्रामिंग. वी मस्ट ऑप्ट पेयर प्रोग्रामिंग. सो व्हाट इज पेयर प्रोग्रामिंग? Code is written by pair of programmers rather than individuals. So for a real world scenario, let me take an example like Ritik and me. Ritik Bhushan Yadav and me, Nikhil Govil. Okay, मान लीजिए कि हम दोनों किसी पर्टिकुलर ये कैलकुलेटर वाले प्रोग्राम पर पेयर प्रोग्रामर्स हैं. क्या कंडीशन होनी चाहिए? द पेयर टुगेदर डिजाइन एल्गोरिथम्स, डेटा स्ट्रक्चर, स्ट्रेटजीज लाइकवाइज. तो मैंने और ऋतिक ने इस कैलकुलेटर प्रोग्राम के लिए उसकी एल्गोरिथम डिफाइन की है, उसके वेरियस डेटा स्ट्रक्चर्स आइडेंटिफाई किए हैं, क्या क्या स्ट्रेटजी होगी हमारी, कि वेदर वी शुड गो फॉर अर्थमेटिक ऑपरेशन फर्स्ट और ट्रिग्नोमेट्रिकल फर्स्ट, व्हाटएवर द केस दैट वी हैव आइडेंटिफाइड. फर्स्ट पॉइंट. One person types the code, the other actively reviews what is being typed. However, this is partial truth.
मान के चलिए कि इस पूरे प्रोजेक्ट को हमें 1 महीने के अंदर कंप्लीट करना है. ओके, सो फ्रॉम 1st of December to 15th of December, ऋतिक विल टेक चार्ज ऑफ कोडिंग. 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक ऋतिक कोड करेंगे इसको, एंड निखिल गोविल विल ऑब्जर्व वॉट एवर इज बींग कोडेड, वॉट एवर इज बींग टाइप्ड बाय ऋतिक. ओके, from 16th December to 31st of December, Nikhil Govil is expected to write the code and Ritik will observe what is being typed. Getting it? तो दोनों ही लोग एक्टिव हैं, बट एक बार में एक ही. पहले 15 दिन के लिए ऋतिक कोड कर रहे हैं, मैं सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो जहां जहां उनकी मिस्टेक है टाइमली आई एम गोइंग टू पॉइंटिंग आउट. अगले 15 दिन पर मैं कोड करूंगा, जहां जहां मेरी मिस्टेक्स होंगी ऋतिक इज रेस्पॉन्सिबल टू पॉइंटिंग आउट, सो दैट कि हमें किसी तीसरे पर्सन की जरूरत ना पड़े जो हमें हमारी गलतियां बताए. ओके, दिस इज कॉल्ड पेयर प्रोग्रामिंग. थर्ड वन इज व्हाट एरर्स आर पॉइंटेड आउट एंड टुगेदर सॉल्यूशंस आर फॉर्मुलेटेड. कि जैसी मेरी कोई गलती ऋतिक ने पकड़ी तो ऋतिक ने मुझे बता दिया कि ये कोड ऐसे डेवलप होना था, यहाँ पर ये इस टाइप की मिस्टेक आ गई थी, दैट हैज नॉट बीन डिक्लेयर्ड अर्लियर, व्हाटएवर. मैंने उसको वहीं उसको रिजॉल्व कर लिया, नो इश्यूज एट ऑल. एंड रोल्स are reversed periodically. जैसे आपको बताता है, it may be for 15 days, may be for weekly basis, may be for 10 days, may be for month wise, as per the efficiency level. Okay, कितने में टाइम का हो सकता है, तो जरा बताएं. आई होप कि ये आप लोगों ने प्रैक्टिस जाने अनजाने में जरूर की होगी कभी न कभी किसी लैब में. सो ऋतिक ऑलरेडी रेस्पॉन्डेड कि ऐसा हुआ है उनके साथ. ओके, सो दिस इज व्हाट पेयर प्रोग्रामिंग. आपको पता ही नहीं था कि आप एजाइल का कुछ टर्म यूज कर रहे थे, लेकिन देखिए नई चीज सीखने को मिली आज, है ना. ओके आदर्श, ग्रेट. जी, शशांक ने भी यही किया. इसका मतलब प्रोग्रामिंग तो आप लोग करते हो, ग्रेट. Okay, let's continue. PP means pair programming has continuous code review and reviews are known to be effective. बराबर रिव्यूइंग चल रही है उसकी. Better design of algo, data structures and logic will be there क्योंकि दोनों लोग एक्टिव मोड में हैं. Special conditions are likely to be declared, डेल्ट विद बेटर एंड नॉट फॉरगेटन. कि जो भी कंडीशन थी, अगर एक कोड कर रहा था दूसरा तो फ्री बैठा था, तो वो याद रखेगा कि भाई ये काम यहाँ पर ये ध्यान रखना. दीज आर द वेरी स्पेसिफिक कंस्ट्रेंट्स कि फॉर दिस पर्टिकुलर टेबल वी हैव टू डिक्लेयर एज अ प्राइमरी की, दिस वन इज शुड बी डिक्लेयर्ड एज फॉरेन की. तो जो फ्री है, जो भी कोडिंग नहीं कर रहा है, उसको याद रखना है. ओके, तो ये कोई स्किप होगा ही नहीं फिर कभी, ऐसा हम मान के चल रहे हैं. इट मे हाउएवर रिजल्ट इन लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी. The main issue is what ownership and accountability issues are also there. अब अगर फिर भी कोड में गलती आ जाए तो रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, निखिल गोविल की या ऋतिक की. ऋतिक कहेंगे कि मैं अगर टाइप कर रहा था, कोड कर रहा था, तो उनको मुझे अवेयर करना चाहिए था, और मैं कहूंगा भाई मैं अवेयर नहीं भी कर पाया तो तुमको ठीक से कोड करना चाहिए था, है ना. तो दिस इश्यूज मे बी देयर. However, effectiveness is not yet not fully known. Okay, तो कितना इफेक्टिव है ये फुली नोन नहीं, बट दिस फिनोमेना इज बीइंग प्रैक्टिस इन इंडस्ट्री एज वेल. कि आप अगर अपने किसी रिलेटिव से पूछें जो इंडस्ट्री में हो, तो आई एम श्योर कि अगर वो अजाइल पे काम कर रहे हैं तो पेयर प्रोग्रामिंग पे ही काम करते होंगे. अगर कोई स्पेसिफिकली छोटा सा किसी पार्ट पे काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली ही और शी इज वर्किंग इन पेयर प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट. Okay, next for this is a last approach, last coding process as source code control and build. So let's focus over here. Source code control is an essential step programmers have to do. To ensure this thing, various tools are available in the market, like CVS and VSS. So let me write the full form of CVS and VSS. You guys are supposed to note it down. Once again, these two topics or these two tools are more related with agile terminologies. Okay, so just note it down. What is CVS? Yeah, please note it down.
these two tools as CVS and VSS. These are once again related with agile methodologies. Okay. A tool consists of repository, which is controlled directory structure. The repository is the official source for all the code files. System build is done from the files in the repository only. Tool typically provides many commands to programmers. अब देखिए बहुत सारी बातें आपको यहाँ क्लियर नहीं हुई होंगी कि सोर्स कोड के थ्रू हम कैसे काम कर रहे हैं, how it can be controlled and built. So there are various tools. Specifically, I am talking about Agile. ये जो फ्रेमवर्क्स मैंने अभी मीनवाइल आपको बताए थे, स्क्रम, कैनबैन और स्क्रम बैन एंड एक्सपी, इन फ्रेमवर्क्स में बहुत सारे टूल्स एप्लीकेबल हैं. वन ऑफ द CVS VSS के अलावा वन मोर टूल इज लाइक जीरा. ये वो जीरा नहीं जो हम लोग खाते हैं, है ना, ये टूल का नाम है जीरा. इस टूल के थ्रू आप सिर्फ अपनी रिक्वायरमेंट्स एंटर कीजिए फॉर अ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट एंड मोस्ट ऑफ द टास्क विल बी ऑटोमेटेड. कि आगे क्या कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए, on what direction your pace is, how much task is to be covered and how much to be left. Your next course of action should be this one, and your developed code should be transmitted to the testing module, testing engine, and once it is had been approved, then already integrated. तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली कंट्रोल्ड होती हैं, ऑटोमेटिकली ही फैशन में आती हैं विद द हेल्प ऑफ दीज टूल्स. तो जो चौथी प्रोसेस है वो यही है. ओके. Next, additionally, some inner technologies, inner mechanisms are also there, like get a local copy, make changes to file, update a local copy. Local means जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं. Okay. Meanwhile, once it has been approved, all the functionalities has been developed, then it should be moved towards the main line. Okay. Get reports time to time that what are the various commands to be executed, what are the histories there, how many versions are we are going to use likewise. And various source code control is an essential tool for developing large projects. तो ये थोड़ा सा आपके लिए अलग नया हो सकता है. तो जरा मुझे बताएं, सोर्स कोड का एक जनरल आइडिया क्या आप लोगों को मिला है? जस्ट लेट मी नो. ओके, ऋतिक नोटेड. जिसको थोड़ा बहुत आई एम श्योर कि थोड़ा पूरा समझ में नहीं आया होगा सोर्स कोड, मैं फिर से बस इसको रिपीट कर दूं कि एजाइल, क्योंकि एजाइल एंड डेवऑप्स यही आजकल फैशन में है इंडस्ट्री में, इनके थ्रू ये पॉपुलर क्यों है? पहला क्वेश्चन तो यही है कि भाई इतने पॉपुलर क्यों है. वी आर हैविंग सो मच सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल, वाटरफॉल भी था, स्पाइरल भी है, रैड भी है. इवन देन व्हाई देन ऑन व्हाट ग्राउंड एजाइल इज बीइंग पॉपुलर? तो उसके पीछे सिंपल सा रीजन ये है कि इसमें सारे काम हम सारे ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द टास्क आर ऑटोमेटेड. कि मैनुअल एफर्ट ही बहुत कम रह गया उसमें. आपको सिर्फ प्रायोरिटी सेट करनी है, आपको अपनी रिक्वायरमेंट्स आइडेंटिफाई करनी है, और उसके आगे का सारा टास्क इन टूल्स की हेल्प से होता है. जैसे CVS आप देख पा रहे हैं, VSS once again I have mentioned as Jira as well. Another one is Kanban. Let me write. Kanban board is there. तो ये इस नाम का एक फ्रेमवर्क भी है और टूल भी है. Kanban, इस पर बहुत सारे टास्क ऑटोमेटेड होते चलते हैं. ओके. तो ये उन्हीं सोर्स कोड कंट्रोल की बात हो रही है, उन्हीं की इनर फंक्शंस रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं. तो सारा काम हम इनके थ्रू करते हैं ऑटोमेटिकली. तो दिस इज अनदर प्रोसेस. ओके. सो दैट वाज द ऑल अबाउट कोडिंग एंड कोडिंग प्रोसेसेस. तो ये एक लेक्चर था जिसमें से कुछ ना कुछ जरूर आएगा एग्जाम में, तो इसको प्लीज देख लीजिएगा. जस्ट 12 or 13 स्लाइड्स आर देयर. एंड वन मोर थिंग, टू मोर थिंग. बाकी सेक्शंस में प्लीज देख लीजिएगा विद रिस्पेक्ट टू दिस कोडिंग कि उन्होंने कुछ और तो नहीं करा दिया है. इतना तो सब लोग कराएंगे ही कराएंगे. बाकी किसे कंपेयर कर लीजिएगा. अगर इसके साथ कुछ और कराया हो तो मुझे बता दीजिएगा टाइमली, सो दैट आई कैन कवर दैट पोर्शन एज वेल. ओके. Second thing is that we are having lecture on Wednesday. Yeah, today is Wednesday. So on 25th, means exactly next week, I will be on leave on 25th. Okay. So I would like to
take your lecture in advance, not in Wednesday. Probably I will take your lecture on Tuesday, next coming Tuesday. Okay. So be mentally prepared for that. I will let you know in well in advance with concern your class advisor. So, but please be mentally prepared. Okay. Okay. So this is and for my side. If you have any query, then please ask. And if no query and you have attended the lecture till 30 to 35 minutes, then you can leave the session. Otherwise, on 2:45 exactly, I will end this meeting. हाँ पापा इनको इनको उठा ले जाओ कमजोरी बहुत आ गया इनको उठाओ कमजोरी बहुत है इनको उठाओ चले हवा ले चले चलिए हाँ तुम बताओ बिल्ली बिल्ली मौसी